जो टॉपिक है दैट इज photosynthesis. The term photosynthesis is not new for you. All you students know what is meant by photosynthesis. That is the process of preparation of food in the plants by using the carbon dioxide, water along with the light and chlorophyll. And food is in the form of glucose molecule along with the oxygen. अब photosynthesis is an anabolic process. It is an anabolic process. Previously in the 6th chapter हमने anabolism and catabolism का concept clear किया था. Anabolism means क्या था कि that is the biochemical reactions in which the new molecules are formed. So as there is the net equation of the photosynthesis showing कि carbon dioxide and water are the simple molecules and they combine together and form a complex molecule, a larger molecules, a new molecule is formed. So process of photosynthesis is an anabolic process. इसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है कि जी all the life depends on photosynthesis, कि तमाम लाइफ जो है वो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करती है. कैसे? As the byproduct of photosynthesis is glucose and the oxygen. Glucose, you know, food which is used by the plants to get the energy, and oxygen is the gas all you persons know that is necessary for all the aerobic organisms for their respiration. Aerobic means the type of organisms that takes or use the energy for respiration, for oxidation of food. अब all life कैसे जी आप कहोगे जी जो तो प्लांट्स को खा रहे हैं एनिमल्स उन पे तो चलो ठीक है, बाकी तो all the life directly or indirectly depends on photosynthesis for their food and also for the oxygen which is used for respiration. अब as in the equation there is the two reactants are required by plants for photosynthesis, that is the carbon dioxide and water. And definitely प्लांट इनको एब्जॉर्ब करेंगे, इनको लेंगे तो देन द पॉसिबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस होगी. सो द प्लांट्स टेक बोथ दीज रिएक्टेंट्स फ्रॉम द environment. These are the raw material for photosynthesis. Carbon dioxide and water are the raw material for the photosynthesis and they are taken by the plants from the environment. As carbon dioxide is present in the atmosphere and plants take that carbon dioxide through the stomata, and the water is present in the soil and roots absorb that water, and from roots that water travels to the stem, xylem of stem, and from xylem of stem it reaches to the leaf, and then it takes part in the photosynthesis in the mesophyll cells that are the specialized cells for the photosynthesis. अब as the net equation is showing कि जस्ट जी बड़ा सिंपल सा प्रोसेस लग रहा है कि लाइकवाइज द कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर से रिएक्ट किया एंड देन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, बट फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ वेरी मच सिंपल प्रोसेस. इट्स अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शंस, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. जैसे एक सिंपल नेट इक्वेशन में तो लगता है ना कि बस यूं यूं हुआ ऐसे हो गया. इट्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शन. एट द 9th क्लास तो खैर इसकी डिटेल्स नहीं है, एफएससी में इंशाल्लाह जब आप जाओगे तो यू विल स्टडी इन डिटेल दैट. अब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारे पास आ जाता है कि जो सीरीज ऑफ रिएक्शन मैं बोल रही हूँ कि इट्स अ वेरी वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. तो फोटोसिंथेसिस के टोटल रिएक्शंस को हम 2 मेन रिएक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, दैट आर द लाइट रिएक्शंस एंड दैट आर द डार्क रिएक्शंस और द केल्विन साइकिल. अब एज द नेम शोइंग द वेरी कॉमन सेंस के जी लाइट रिएक्शंस हैं तो दे आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम, एंड द डार्क रिएक्शंस हैं तो डार्क मीन्स नाइट मीन्स कि जी इन द डार्कनेस होगा. नो, ऐसा नहीं है. बोथ मीन्स द लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस. जो स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शंस हैं एंड स्टेप ऑफ डार्क रिएक्शंस हैं, बोथ आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम.
लाइट और डार्क मीन्स ये नहीं है कि जी सम ऑफ द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम एंड सम ऑफ द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट द नाइट. All the reactions of the photosynthesis are taking place during the daytime in the presence of sunlight. नेम जो शो कर रही हैं लाइट रिएक्शंस मीन के दे आर यूजिंग द सनलाइट फॉर प्रोसेस एंड डार्क रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली सनलाइट को यूज नहीं करे. दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड लाइट एंड डार्क रिएक्शंस. अब लाइट रिएक्शंस यूज द लाइट from the sun, light energy from the sun, and then converted into chemical energy in the form of two molecules, that is NADPH and ATP. During the light reactions, these reactions takes place in the thylakoid membranes of chloroplast. आप लोगों ने भी 4th चैप्टर तो नहीं हमने डिस्कस किया, बट क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर वहाँ डिटेल है कि मैं यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो स्मूथ है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है वो स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स बना रहे हैं. ये जो आपको थोड़े से सैक-लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स. तो लाइट रिएक्शंस होती हैं इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. अब during the light reactions the two energy rich compounds are produced or formed as light reactions are taking the light energy and then converted into chemical energy, and that two compounds are NADPH and ATP. ATP का तो आपको पता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. NADPH is also an energy rich compound that stands for nicotinamide dihydrogen phosphate. अब second जो type of reactions हैं that are the dark reactions. These are also taking place during the daytime, but they are not utilizing the energy light energy directly. जो energy हमारे पास light reactions में आई, they use that energy, और वो कहाँ से? From the molecules of NADPH और ATP. And these reactions are taking place in the stroma of chloroplast. बेसिकली हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को टू मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक थाइलाकोइड्स जिसमें जो जिनमें क्या हो रही है लाइट रिएक्शंस. एज थाइलाकोइड्स की जो सैक्स होती है ग्रेना, उनके अंदर क्लोरोफिल है, तो दैट्स वाई. एंड थाइलाकोइड्स अदर देन थाइलाकोइड्स जो स्पेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट होती है दैट इज फ्लूइड फिल्ड, इट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा. तो डार्क रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अब हमारे पास ये तो मैंने एक मीन थोड़ा सा डिफाइन किया what are the light reactions and the dark reactions. now हमारे पास इसी लेक्चर में light reactions को हमने डिटेल में करना है. light reactions और the Z scheme. light reactions को हम Z scheme भी बोलते हैं. Z scheme क्यों? कि इनकी जो लाइट इनकी जो डायग्रामेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इट फॉर्म अ Z शेप. अगर आप इसको थोड़ा सा टर्न करके उल्टा करके देखो तो इट्स फॉर्म अ Z शेप. That's why it is called the Z scheme. अब during the light reactions तीन मैंने जो डिवाइड किया, 3 मेन इवेंट्स होंगे. एक फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक लाइट एनर्जी की वजह से फोटोलिसिस का प्रोसेस होगा जो भी हम डिटेल में देखते हैं व्हाट इज मीन बाय दैट, एंड एक फॉर्मेशन ऑफ NADPH. एज अर्लियर आई टोल्ड यू कि लाइट रिएक्शंस की डेफिनेशन के अंदर कि ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शंस the two energy rich compounds are formed, that is adenosine triphosphate यानी ATP and NADPH यानी nicotinamide dinucleotide hydrogen phosphate. अब as the light falls on the leaf तो उसके जो chlorophyll है that absorb the molecules of light and energy level जो क्लोरोफिल है दैट इंक्रीजेस एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. कि जब लाइट फॉल करती है ऑन द लीफ तो लीफ के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा दैट लाइट को. एस उस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा फ्रॉम द क्लोरोफिल. अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे पासेस थ्रू द चेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC यहाँ पे मैंने शो किया है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सीरीज ऑफ रिएक्शन होगी दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इन इलेक्ट्रॉन्स को
ये रिएक्शंस जो हैं किस में कन्वर्ट करेंगे, इन द एटीपी के मॉलिक्यूल में जो एनर्जी उनकी होगी कैप्चर होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एज लाइट इज फॉलिंग ऑन द लीफ, तो मीनवाइल जो वाटर प्रेजेंट है इन द लीफ विच इज अब्सॉर्ब बाय फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स, वो वाटर जो है उसका ब्रेक डाउन होगा, वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, स्प्लिटिंग अप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल होगी बाय द लाइट, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोलिसिस। मैंने कहा था ना सेकेंड एक मैंने एक इवेंट उसका रखा है, ये मेन पॉइंट रखा है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू लाइट एनर्जी इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आइंस। अब सब बच्चों को पता है कि जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही, तो वो इस स्टेप पे बाय द फोटोलिसिस प्रोड्यूस हो गई, एंड दिस ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड नेसेसरी फॉर द रेस्पिरेशन। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप आएगा दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ NADPH, दैट इज अनदर एनर्जी रिच कंपाउंड। तो अब जो हाइड्रोजन एटम्स ऑफ वाटर होंगे, यानी यहां पे जो हाइड्रोजन एटम आए हैं, दे गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू द क्लोरोफिल, एंड दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल क्या करेंगे, हाइड्रोजन आइंस ऑफ वाटर को रिड्यूस करेंगे फ्रॉम NADP टू NADPH। कि हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ NADPH में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ATP की मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के बाद रह गए थे, वो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वाटर जो हैं वो हाइड्रोजन आइंस ऑफ वाटर को यूज करेंगे फॉर द रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स क्या होता है, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन आइंस रिड्यूस करेंगे NADP, यानी कोएंजाइम है NADP, नाइट्रोजन निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट, जिसको रिड्यूस करेंगे इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड NADPH, एब्रिवेटेड फॉर्म है, दैट स्टैंड्स फॉर निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब ये जो होल प्रोसेस है इसमें हमारे पास इन द लाइट रिएक्शंस क्या है, एक्चुअली फॉर्मेशन हुई या कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी हुई इन द फॉर्म ऑफ टू एनर्जी रिच कंपाउंड्स दैट आर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट। लाइट रिएक्शंस के बाद अब हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगी डार्क रिएक्शंस और द केल्विन साइकिल। ओके।